Good morning, my dear students. Students, in previous lecture, we have saw about regional and traditional games, where we have saw what is meant by regional and what is meant by traditional games. Regional games are the games that are being played in a particular area, particular country, particular states are called as regional games, whereas traditional games means the games that are being played during an occasion or any celebration are called traditional games. So this we have saw in previous lecture. So in that we have saw various types of regional games, various different types of regional games such as langdi, kho kho, lazim, seven stone, top, etc. Then we have discussed about all those games. Then we have done two activities. In first activity we have list out our favorite games and we have wrote few sentences on our favorite game, why do we like it. Like example, we have wrote football and we have wrote a sentence that I like to play football because in this game we play together with friends. Then we have wrote other games name also such as cricket, running, kho, marbles, etc. Then in third question we were be told that name a popular games played in your hometown like village and stick a picture of it. So here we were being told to write the game name and to stick the picture of that. So we have wrote football and we have stick the picture of football. So this we have done in a previous lecture, that was regional and traditional games. So students, in today's lecture we are going to see the next topic. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, please open your EVS combined book पेज नंबर 66. तो आपका EVS का combined book का पेज नंबर 66 खोलो. So let's start with it. So the topic name is variety of games. So आज का जो टॉपिक है हमारा वो है varieties of games. So what is mean by varieties of games? Varieties of games यानी क्या? So the varieties of games यानी गेम्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्पीड वाले जो गेम्स रहते हैं वो, जो एक्शन वाले गेम्स रहते हैं वो, फिर एडवेंचर वाले गेम्स, देन स्पोर्ट्स गेम्स, पजल गेम्स, स्टिमुलेशन गेम्स, फिर कोऑर्डिनेशन वाले जो गेम्स रहते हैं वो, फिर स्ट्रेचिंग वाले गेम्स है वो, बैलेंसिंग गेम्स, ये सब वैरायटीज ऑफ गेम्स, ये सब गेम्स के अलग अलग वैरायटीज है. जैसे स्पीड्स गेम में हम रनिंग रेस, जो फास्ट रन करने वाले, फास्ट चलने वाले गेम्स होती है जो स्पीड के रिलेटेड रहते हैं, वो सब स्पीड गेम्स है. फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन गेम्स यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो गेम खेले जाते हैं, जैसे बॉल पास करना, यानी दूसरे पार्टनर को बताना चाहिए कि मैं कब किस प्रकार से बॉल पास करने वाली, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहता है. फिर बैलेंस गेम यानी हमें खुद का बैलेंस बनाना चाहिए, उसको हम बैलेंस गेम्स कहते हैं. इस प्रकार अलग अलग तरीके से गेम्स खेले जाते हैं. सो दिस आर ऑल वैरायटीज ऑफ गेम्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. So the first type they have given is muscle building and strengthening games. Muscle building and strengthening games यानी क्या? तो जो गेम में हम मसल का इस्तेमाल करते हैं, जो गेम में हमारा मसल बिल्ड होता है, उसे ही हम मसल बिल्डिंग गेम कहते हैं. और स्ट्रेच गेम यानी जहाँ पे हम स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उसे ही हम स्ट्रेच गेम्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने 5 गेम के नाम दिए. हैंगिंग ऑन द बार, हैंगिंग ऑन द बार यानी रॉड रहता है और रॉड के ऊपर हम दोनों हाथ रख के हमारे बॉडी को लिफ्ट करते हैं, उसे हम हैंगिंग कहते हैं. जैसे आपको ये पिक्चर भी दिख रहा होगा, एक लड़के ने अपने दोनों हाथ रॉड के ऊपर रख के वो खुद हैंग हो रहा है, यानी यहाँ पे उसका मसल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसका मसल बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे उसने अपने हाथों का स्ट्रेचिंग किया है. सो दिस इज कॉल्ड एज हैंगिंग ऑन द बार. जो बार है, बार यानी वो जो रॉड है उसको बार कहते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट स्विंगिंग विद द हेल्प ऑफ अ रोप. स्विंगिंग यानी जो रोप है उसके ऊपर हम
रोप को हम अच्छी तरीके से पकड़ के उसके ऊपर हम स्विंग करते, लटक जाते, उसे ही हम स्विंगिंग कहते हैं। यानी जो लड़का है उसने क्या किया है, अपने दोनों हाथों से वो जो रस्सी है उसको पकड़ा हुआ है और वो रस्सी के लटका हुआ है, यानी वो स्विंग कर रहा है। तो वो रोप की हेल्प से वो स्विंग करे, सो स्विंगिंग विद द हेल्प ऑफ रोप। उसके बाद है हैंगिंग ऑन द रूट्स ऑफ बनियन ट्री। जो बनियन ट्री रहते हैं, आपने देखा होगा बनियन ट्री के ऐसे रूट जो रहते हैं लंबे लंबे, वो ऐसे बाहर आए हुए रहते हैं। जो ब्रांचेस है उसको जो रूट्स है वो बाहर आए हुए रहते हैं। तो पहले पुराने ज़माने में, यानी जब छोटे बच्चे थे, वो क्या करते, बनियन ट्री के नीचे खेलने के लिए आते थे। तो जो बनियन ट्री के रूट्स है उनको वो ऐसे लटकते थे और हैंग होके वो झूला जैसे झूलते थे। जैसे वो पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो बनियन ट्री का ब्रांच है उसको जो रूट्स है, वो रूट्स को वो लड़का ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, वो लटक रहा है और वो स्विंग कर रहा है। सो हैंगिंग ऑन द रूट ऑफ द बनियन ट्री। उसके बाद है थ्रोइंग द बॉल। थ्रोइंग द बॉल, तो यहाँ पे जो लड़की है वो अपने हाथों से बॉल को फेंक रही है, वो लड़की अपने हाथों से बॉल को थ्रो कर रही है। सो दैट गर्ल इज थ्रोइंग द बॉल। सो यहाँ पे वो एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, वो बॉल थ्रो करने के लिए अपने हाथ को स्ट्रेच कर रही है। तो यहाँ पे मसल बिल्ड्स भी हो रहा है। सो थ्रोइंग द बॉल। और लास्ट में है होपिंग। होपिंग यानी लंगड़ी, जिसे हम लंगड़ी कहते हैं। ये गेम में क्या करते हैं, तो हमारा एक पैर जो रहता है वो ज़मीन के नीचे यानी ग्राउंड पे रहता है और दूसरा पैर हम उठाते हैं, हवा में उठाते हैं और फिर हम जंप करके हम दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको आउट करते हैं। यहाँ पे हम होपिंग करते हैं। आपको दिख रहा है वो लड़की ने अपना जो राइट लेग है वो ऊपर किया है और लेफ्ट लेग नीचे रखा है और फिर वो आउट कर रही है, होपिंग कर रही है, उसको ही हम लंगड़ी कहती है। सो यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा हैंगिंग ऑन द बार, सेकेंड हमने देखा स्विंगिंग विद द हेल्प ऑफ रोप, थर्ड हमने देखा हैंगिंग ऑन द रूट ऑफ अ बनियन ट्री, उसके बाद देखा थ्रोइंग द बॉल एंड उसके बाद होपिंग। अभी उसके नीचे बेनिफिट्स दिया है। बेनिफिट्स यानी वो किस प्रकार हमें हेल्पफुल है, तो इंक्रीजिंग फिटनेस एंड इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सो अगर हम गेम्स खेलेंगे तो वो हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, मीन्स हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर हम फिट एंड फाइन भी रहते हैं। सो इंक्रीजिंग फिटनेस एंड इनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ओके, अभी उसके नीचे हमें एक एक्टिविटी दी है, क्वेश्चन दिया है, लिस्ट द डिफरेंट गेम्स प्लेड विद अ बॉल एंड राइट विच मसल डज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड स्ट्रेंचिंग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि कोई गेम, एक या दो गेम्स के नाम लिखो, वो किस प्रकार हमारे मसल को हेल्प करता है। तो आपको कोई भी ऐसे दो गेम्स के नाम लिखने हैं जिससे हमारे मसल को हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थ्रोइंग द बॉल। थ्रोइंग द बॉल ये हमारे हैंड यानी जो हाथ का मसल है उसको यूज़फुल है, तो मैंने यहाँ पे हैंड्स लिखा है। और उसके बाद फुटबॉल, तो जो हमारे लेग्स, जहाँ पे हमारे लेग्स को स्ट्रेचिंग मिलता है। सो यहाँ पे मैंने थ्रोइंग द बॉल हैंड्स लिखा है और फुटबॉल का लेग्स लिखा है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जो गेम आपको मालूम है, नहीं तो आप ये दोनों नाम भी लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इनहैंसिंग गेम्स। फ्लेक्सिबिलिटी इनहैंसिंग गेम्स मेक अ कर्व ऑफ द बॉडी। पहले फ्लेक्सिबिलिटी इनहैंसिंग गेम्स यानी क्या, जहाँ पे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, जहाँ पे हम हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं, जैसे हमारे हाथ को स्ट्रेच करके, हमारे लेग को स्ट्रेच करके, हमारे बॉडी को कर्व शेप में या साइड में या पीछे या आगे बेंड करके हम जो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं उसको ही हम फ्लेक्सिबिलिटी गेम्स कहते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के जो योगा पोसेस है वो हम यहाँ पे करते हैं, उसको ही हम फ्लेक्सिबिलिटी गेम कहते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में उन्होंने दिखाया मेकिंग अ कर्व ऑफ अ बॉडी, तो यहाँ पे हम हमारे बॉडी को कर्व शेप में लाते हैं, जैसे पैर को नीचे, दोनों पैर को नीचे रख के हमारे बॉडी को उल्टा रख के हाथों का सपोर्ट, हैंड्स का सपोर्ट लेते हैं और हमारी बॉडी को कर्व शेप में लाते हैं, उससे ही हम मेकिंग अ कर्व ऑफ अ बॉडी कहते हैं। तो आपको वो पिक्चर में दिख रहा होगा किस प्रकार वो लड़के ने कर्व शेप में उसकी बॉडी लाई है। वेरी गुड। तो यहाँ पे उसने अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। उसके बाद सेकंड पिक्चर में उन्होंने दिखाया है स्ट्रेचिंग द लेग। तो यहाँ पे एक लड़का है, उसने दोनों लेग को
साइड में स्ट्रेच किया है, स्ट्रेट लाइन में उसने अपने दोनों लेग को स्ट्रेच किया है, तो यहाँ पे उसने अपने पैरों का फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया हुआ है, स्ट्रेचिंग द लेग. ओके, सो दिस टू पिक्चर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंसिंग गेम्स. अभी उसके नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ट्राई द अबव फ्लेक्सिबिलिटी पोज ड्यूरिंग फिजिकल एजुकेशन क्लास, दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर. तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो आपको करने के लिए बोला है पीटी लेक्चर में, तो आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो, पर आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए. आप खुद अकेले मत कीजिए, नहीं तो आपको चोट पहुंचेगी, इसलिए आपको पेरेंट्स के सर्वे के नीचे ही करना है. अभी इसका बेनिफिट क्या है, हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है, इसलिए लोग ज़्यादातर योगा करते हैं, क्योंकि योगा करने से बाद हमारा जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, हमारे जो जॉइंट को उसको प्रॉब्लम नहीं होता. ओके, अभी उसके नीचे आपको एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, पोज लाइक अ सुपर हीरो एंड राइट अबाउट द डिफरेंट मसल्स बीइंग स्ट्रेच. तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रेचिंग के जो बॉडी मूवमेंट्स है उनके नाम लिखने हैं. तो यहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे हैं और कौन सा मसल स्ट्रेच होता है वो लिखा है. तो स्ट्रेचिंग हैंड बैक, जो हमारे हाथ है उसको हम पीछे स्ट्रेच करते हैं, उसको ही हम स्ट्रेचिंग हैंड बैक कहते हैं. तो उसमें हमारा कौन सा मसल यूज़ होता है, हाथ का, हैंड्स मसल. सो मैंने यहाँ पे हैंड्स लिखा है. उसके बाद बेंडिंग डाउन, यानी हमारे वेस्ट से हम नीचे बेंड होते हैं, हमारे कमर से हम नीचे झुकते हैं, उसे हम बेंडिंग डाउन कहते हैं. यहाँ पे हमारा वेस्ट का इस्तेमाल होता है. सो यू विल राइट दिस इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 66. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 67. सो देयर आर गेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना कि कौन पहले करेगा, कौन दूसरा, कौन कैच करेगा, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन वाला गेम्स. तो फर्स्ट पिक्चर है ट्विस्ट एंड पास द बॉल. तो यहाँ पे हैंड्स का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. ट्विस्ट एंड पास द बॉल यानी यहाँ पे हाथों से हम बॉल को पास करते, तो यहाँ पे हमारे हैंड का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. आपको वो पिक्चर में दिख रहा है 2 लड़की बॉल को पास करे, तो यहाँ पे उन दोनों का हैंड का कोऑर्डिनेशन है. उसके नीचे साइकिलिंग, आई लेग कोऑर्डिनेशन. जब भी आप साइकिलिंग करते हो तभी आपको देखना भी है और लेग से वो साइकिल को आगे चलाना भी है, तो यहाँ पे आई का और लेग का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. उसके बाद है टारगेट, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. जब भी आप कोई टारगेट कर रहे हैं, टारगेट यानी अच्छे से वो सर्कल को देख के वो जो हाथ में है वो अच्छे से वो सर्कल के अंदर ही थ्रो करना है, तो यहाँ पे हम टारगेट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा हाथों का इस्तेमाल करते हैं और आई का इस्तेमाल, तो हाथों का और आई का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. उसके बाद साइड में कैचिंग द बॉल, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. जब भी आप बॉल को कैच करते हो तभी आपको ध्यान देना है कि आपने आई से वो बॉल को ऊपर नज़र रखनी है और कैच करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे हैंड और आई कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. उसके बाद पासिंग द बॉल, पासिंग द बॉल के टाइम पे हैंड का कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को बॉल जब पास कर रहे हो तभी आपका हाथों का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए. और फुटबॉल लास्ट में आई लेग कोऑर्डिनेशन. जब भी आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप फुटबॉल को किक मारने के लिए अपने लेग का इस्तेमाल करते हो, तो लेग का और आई का कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए वो बॉल के ऊपर. सो दिस आर द गेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट गेम वॉज ट्विस्ट एंड पास द बॉल, जहाँ पे हैंड कोऑर्डिनेशन रहते हैं. सेकेंड गेम वॉज साइकिलिंग, जहाँ पे आई लेग कोऑर्डिनेशन है. थर्ड गेम इज टारगेट, जहाँ पे हैंड आई कोऑर्डिनेशन है. फोर्थ गेम इज कैचिंग द बॉल, जहाँ पे हैंड्स और आई कोऑर्डिनेशन है. फिफ्थ गेम इज पासिंग द बॉल, जहाँ पे हैंड का कोऑर्डिनेशन है. और लास्ट गेम इज फुटबॉल, जहाँ पे आई और लेग का कोऑर्डिनेशन है. सो द बेनिफिट इज एनहांस मेमोरीज, लर्निंग, कॉन्सेंट्रेशन एंड थिंकिंग स्पीड. तो ये गेम में क्या हमारी मेमोरी को एनहांस करते हैं, फिर हम यहाँ पे नया ट्रिक्स सीखते हैं, फिर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और थिंकिंग स्पीड भी. देन द गेम नेक्स्ट गेम इज स्पीड गेम. स्पीड गेम यानी जो गेम में हम स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रनिंग रेस, लंगड़ी, 3 रेस, यहाँ पे हम स्पीड्स देखते हैं. उन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है रनिंग रेस, जहाँ पे हम स्पीड देखते हैं, एक दूसरे को कॉम्पिटिट करते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा फास्ट भागने के लिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम रनिंग रेस कहते हैं. एनकरेज चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ड्रिबल्स द बॉल, रिले, 100 मीटर रेस, हुप एंड रन रिले. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपने चाइल्ड को जो रेस रहते हैं उनमें एनकरेज करना चाहिए. बेनिफिट इम्प्रूव
ब्रेन स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हमारे ब्रेन का स्पीड यानी थिंकिंग पावर इंप्रूव करते हैं, स्पीड इंप्रूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट वन इज बैलेंसिंग गेम. बैलेंसिंग गेम यानी जो गेम में हम खुद का बैलेंस बना के रखते हैं, जो गेम में हम खुद का बैलेंस बना के रखते हैं उसको ही हम बैलेंसिंग गेम कहते हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर में उन्होंने टी बैलेंस यानी एक पैर के ऊपर खड़ा होकर हमारी जो पूरा बॉडी है उसको बैलेंस करना है, टी शेप में लाके उसको बैलेंस करना है, जैसे वो लड़के ने किया है. सेकेंड वन इज बुक बैलेंस, जहाँ पे बुक को हमारे सर के ऊपर रख के हमें चलना है, तो हमें यहाँ पे बुक को बैलेंस करना है, बुक को नीचे नहीं गिराना है. आपको वो पिक्चर में दिख रहा होगा, दैट इज़ बुक बैलेंस. उसके बाद है लेमन एंड स्पून. लेमन एंड स्पून यानी यहाँ पे हमें जो स्पून है उसको मुंह में रख के उसके ऊपर लेमन रखना है और वो लेमन को बैलेंस करते हुए हमें फिनिश लाइन तक चलना है. तो यहाँ पे हमें लेमन को बैलेंस करना है, लेमन एंड स्पून. उसके बाद है बैलेंसिंग बीम. बैलेंसिंग बीम यानी यहाँ पे एक पतला जैसा रॉड रहता है, उसके ऊपर हमें खुद का बैलेंस रख के चलना है. सो दैट इज़ बैलेंसिंग बीम. एंड द लास्ट वन इज़ वॉकिंग ऑन द ब्रिक. तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है कि हमारा एक पैर अगर एक ब्रिक के ऊपर है तो सामने वाली ब्रिक के ऊपर हमारा दूसरा पैर रहना चाहिए. तो यहाँ पे जो दोनों पैर के अंदर डिस्टेंस है उसमें हमें खुद की बॉडी को बैलेंस रखना चाहिए. आपको वो पिक्चर में दिख रहा होगा. येस, सो दिस आर ऑल बैलेंसिंग गेम्स. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस बैलेंसिंग गेम? इंक्रीज कॉन्फिडेंट. ये गेम से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होते हैं. कैसे? तो हम खुद को बैलेंस करते हैं, खुद को संभालते हैं, खुद की बॉडी को संभालते हैं, खुद की बॉडी को मेंटेन करते हैं एक जगह पे, और उस जो भी चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट हमारे साथ हम कैरी कर रहे हैं उसको हम बैलेंस करके वो अच्छी तरीके से वो आगे लेके जाते हैं, उसे ही हम बैलेंसिंग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न इन टुडेज लेक्चर. तो अभी हम रिकैप करेंगे आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा. So in today's lecture we have saw about varieties of games, where we have saw muscle building and stretching games, where we have saw 5 types of games, that was hanging the bar, swinging with the help of rope, then hanging the root of the banyan tree, then throwing the ball and then hopping. So these all games we have saw we do the exercise of our muscles. यहाँ पे हम muscle का इस्तेमाल करते हैं, हमारे body को stretch करते हैं. Then we saw the benefit, that is increasing fitness and enhance sport performance. Then we have done an activity where we have list different games played with a ball, and we have wrote which muscle does it help in building and stretching. So we have wrote throwing the ball, hands, football, leg. Then we have saw flexibility enhancing games, where we have saw 2 types of game, that is making a curve of the body and stretching the leg. So in making a curve of the body we have saw how to make a curve of a body. So here we have saw flexibility of a body while making a curve of a body. Then we have done stretching the leg, where we have saw flexibility of a leg by stretching the leg. Then we have saw the benefit that where we have saw healthy growth and development. Then we have done an activity where we have wrote like a sport hero and write about the different muscles being stretched. Like we have wrote stretching hands, back, that is hand, bending down, that is waist. Then on page number 67 we have saw games of coordination, that is coordination games, where we have saw 6 coordination games. First coordination game was twisting and passing the ball, where we coordinate with our hands. Second coordination game was cycling, where we coordinate eyes and leg. Third game was target, where we coordinate eye and hands. Then fourth game was catching the ball, where we coordinate hand and eye. Then fifth game was passing the ball, where we coordinate hands. And the last game was football, where we coordinate eyes and leg. So these were all games of coordination. So the benefit of games of coordination are enhanced memory, learning, concentrate and thinking speed. Then we have saw speed game, where we have saw running race. Then we have saw benefit of that is improved brain speed and coordination. And the last, on page number 68 we have saw that was balancing game, that is T balance, book balance, lemon and spoon, balancing beam, walking on the brick. So benefit of this game was increasing confidence. Now below that there is an activity, उसके नीचे activity दी है, वहाँ पे हमें क्या बोला है, say my emotion. तो यहाँ पे उन्होंने 3 इमोशंस दिए, ऑब्जर्व द इमोशन एंड कलर द स्माइल हैविंग द सेम इमोशन. तो आपको क्या करना है,
वो जो स्माइल फेस दिए हैं वो ऑब्जर्व करने हैं, और उसके नीचे जो छोटे छोटे स्माइल फेस दिए हैं, जो स्माइल फेस उन्होंने वहाँ पे दिए वो ऑब्जर्व करके नीचे का स्माइल फेस को आपको कलर करना है। तो फर्स्ट स्माइल फेस यू कैन सी एट लास्ट, थर्ड वाला, तो आपको वहाँ पे कलर करना है। इन सेकेंड स्माइल फेस यू कैन सी सेकेंड वन, सो आपको सेकेंड वन को कलर करना है, और लास्ट स्माइल फेस को आपको फर्स्ट वन को कलर करना है। सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ होमवर्क टाइम। अभी आपका होमवर्क, सो द होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट योर ईवीएस कंबाइंड बुक पेज नंबर 66। तो आपको आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक का पेज नंबर जो 66 है वो आपको कंप्लीट करना है। वहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। आपको आपके वीडियो में दिख रहा है किस प्रकार से मैंने आंसर लिखा है, वैसे ही आपको वो आंसर लिख के वो कंप्लीट करना है। सो आपको पेज नंबर 66 कंप्लीट करना है, और फिर बाद में पेज नंबर 68 जो स्माइल फेस है वहाँ पे कलर करना है। तो आपको वो जो स्माइल फेस है उसको कलर करना है। तो ये आपका होमवर्क है। सो आपके दो होमवर्क है। कौन से होमवर्क है? फर्स्ट होमवर्क इज ऑन पेज नंबर 66, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और बाद में होमवर्क है वो है पेज नंबर ऑन 68, दैट इज कलर दैट स्माइली फेस। तो आपको ये दो होमवर्क करने हैं, पेज नंबर 66 और 68 वाला। करने के बाद दोनों पेज का फोटो खींचना है और मुझे भेजना है। सो आई होप यू विल कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।